उज्जवल भारत न्यूज की नई पेशकश यूबी न्यूज प्रेजेंट्स अचीवर्स यानी उपलब्धियां, मेरी आपकी हम सभी की उपलब्धियां, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार, उज्जवल भारत के अचीवर्स के यानी उपलब्धियां के इस छठे एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारी जो मेहमान है वो है एक फ्लूटिस्ट यानी फ्लूट बजाने वाली, जिनका नाम है हिमाली पानवाला। वे सूरत से है। कहते हैं ना, सूरत एटले सोनानी मूरत, लेकिन हिमाली पानवाला ने इस सूरत को स्वरों का शहर का खिताब दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। हिमाली पानवाला यानी हारमोनियस, शी इज आइकॉनिकल, शी इज मैजेस्टिक, शी इज एंजेलिक, शी इज लिरिकल, शी इज इनोवेटिव। दैट मीन्स हिमाली पानवाला जो सूरत से बिलोंग करती है। इन्होंने एक संगीत की दुनिया में विश्व रिकॉर्ड पे नाम अपना दर्ज करवा लिया है। लगातार 12 घंटे से भी ज्यादा इन्होंने एक म्यूजिकल शो अपने बैंड के साथ करके एक संगीत की दुनिया में एक रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। हिमाली पानवाला, the simplest way Himali would describe herself would be an art lover, immensely fond of music. Himali started her journey of learning this art from back in 2001 after seeing her daughter learn Indian classical music. Her training took almost 10 years, including giving vocal examinations from different universities. It is said that nothing comes easy. Obviously, we have to do hard work and dedication should be always there. In 2009, just before the examination of her last level, Himali met with a road accident and was bedridden for almost 6 months and had to give up on her art temporarily. But as they say, there is no substitute for hard work. Himali started prepping for her last level as soon as she started recovering. Soon she realized there is more to this world of music than just singing, and she was super keen to dig deep. With great support from her husband, Mr. Rajiv, her journey of acquainting with musical instruments soon began. For Himali, learning music was not only practicing, but it was also like meditation. And she was unfolding in layer by layer. With immense family support to achieve her dreams, and with her daughter also learning classical singing, there were times they would jam and riyaz at home itself. Himali has been a school teacher for almost 24 years, and mentoring Tiny Thoughts was a part of her job, along with leading multiple co-curricular activities. Working with many academic organizations gave her 360-degree experience. It means all-rounder in almost every department, and soon she planned to have her own music academy because she knew she was now ready to pass on the knowledge she has been fortunate to have over the years. Somebody once said, "You just got a dream." In Himali's case, she did, and finally started her own academy of music, art and craft. As soon as she had her batches ready, training started, and before she knew it, they were all planning to have an annual showcase for the first year. The students were thrilled, and so was Himali. And even today, she experiences the same amount of thrill and satisfaction that she got when they first started. As time passed, Himali's students became the most important part of her life. Himali can't stress enough on how truly blessed she is to have such a family who supports her tremendously. But just when everything was fine, Himali met with an accident again and was bedridden for almost 3 months, as her right leg was injured and she was saddled with the walker. But this time she was determined to bounce back sooner than before, and her students her finally were of great help. In no time she was back on track, this time even stronger. तो आइए आप सभी से मिलवाते हैं उस महान महिला से, जिसने सूरत में ही नहीं, पूरे गुजरात में ही नहीं, देश भर में, विश्व भर में, विश्व स्तर पर अपना संगीत की दुनिया में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जिन्होंने लगातार 12 घंटों से भी ज़्यादा नॉन स्टॉप एक म्यूजिकल शो किया है और
वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक की दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो आइए मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। हमारे सूरत की ही, जिसे हम कहते हैं सूरत एटले सोनानी मूरत, लेकिन हिमालय जी ने इस सूरत को स्वरों का शहर के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं हिमाली पानवाला फ्रॉम सूरत। नमस्कार हिमाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल के नए कार्यक्रम में, जो उज्जवल भारत ने एक मुहिम शुरू किया है ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे प्रतिभाओं को एक सामने लाना, लोगों तक पहुंचाना, जिसका नाम है उपलब्धियां यानी अचीवर्स। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने जो कला के क्षेत्र में इतना नाम कमाया है, महिला होने के साथ साथ घर का काम संभाल कर, परिवार संभाल कर, घर परिवार संभालते हुए आपने कला क्षेत्र में इतना उम्दा जो स्थान हासिल किया है। बहुत सारी जो प्रतिभाशालियों को मैंने सुना है, हर व्यक्ति को गोल अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बात करेंगे। पहले आप अच्छे से परिचय दे दीजिए। जी, थैंक यू सो मच सीमा जी। बहुत ही अच्छा लगा आपको देखकर, आपको सुनकर। और मेरा जन्म मुंबई में हुआ है एंड मुंबई में ही पली बड़ी हूँ, और शादी मेरी सूरत में, गुजरात में हुई थी। तो लगभग 22 साल की उम्र में मैं सूरत ही रहती हूँ। 22 साल की उम्र से सूरत रहती हूँ। सो नाउ आई एम इन सूरत। और मुझे एक बेटी है एंड बहुत ही प्यारा परिवार है। मेरे सास ससुर, देवरानी, देवर एंड एवरीबॉडी, बहुत सुंदर प्यारा परिवार है मेरा। इस फील्ड में कैसे आना हुआ, तो उसके लिए मैं पूरा श्रेय मेरी बेटी को देना चाहूंगी, बिकॉज वो पहले से ही बहुत अच्छा गाती थी। ऐसा उसके नर्सरी जूनियर के टीचर ने बताया था मुझे कि आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है, तब उसको म्यूजिक में रखना चाहिए। मतलब म्यूजिक टीचर ने ही मुझे बोला था कि योर डॉटर इज सिंगिंग रियली गुड। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप ही म्यूजिक में जानते हैं तो फिर आप ही म्यूजिक सिखाना शुरू कर दें। और तभी लगभग 20 साल पहले की बात है ये, मोर देन दैट। सो तभी माय डॉटर विधि, वो मुझे आके गाने सुनाती थी एंड जो भी सीखती थी क्लासिकल में, एंड शी यूज्ड टू कम एंड मुझे गाने सुनाना एंड ऑल दैट। तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये बहुत ही अच्छी कला है, और शास्त्रीय संगीत स्पेशली। तो तभी तो कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ भाई कोई एज बार नहीं होता, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा माइंडसेट था कि नहीं, सिर्फ बच्चे ही, मतलब सीखना कुछ भी हो तो बच्चे ही सीख सकते हैं। सो मैंने लिटरली डरते डरते मैंने वो म्यूजिक टीचर से पूछा कि मुझे सीखना है तो सीख सकती हूँ क्या? शी सेड हाँ ओके, व्हाई नॉट, आप भी सीख सकती है। एंड देन वो जर्नी मेरी शुरू हुई म्यूजिक सीखने की, जो अब तक चालू है। मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के रहना चाहूंगी। कुछ ना कुछ सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बेटी मुझसे 1 साल सीनियर थी म्यूजिक में। सो इट वाज अगेन अ फन। हम लोग दोनों एग्जाम्स साथ में देते थे एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत जर्नी रही थी मेरी म्यूजिक की। बहुत सारे हर्डल्स भी आए थे ऑफ कोर्स म्यूजिकल जर्नी में कहो या लाइफ में, बट जो सीखने का भाव था मेरा वो कभी कम नहीं हुआ था। तो दिस इज हाउ आई एंटर्ड इन म्यूजिक फील्ड। एंड धीरे धीरे उसमें म्यूजिक इतना गहरा है कि समुंदर से ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि देयर इज नो लिमिट, या आसमान से भी बड़ा। तो वो उसके बहुत सारे लेयर्स हैं म्यूजिक के। तो जितने लेयर्स में, मतलब जितनी अंदर जाती गई, उतना ही मुझे ज्यादा मजा आने लगा। एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मैंने सीखना शुरू किया। फ्लूट सीखा, बिकॉज फ्लूट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे लगा कि कुछ बहुत ही अलग इंस्ट्रूमेंट है। साथ साथ में कभी लेडी को मैंने फ्लूट बजाते हुए नहीं देखा था या नहीं सुना था। तो वो एक भाव फिर पता नहीं कैसे आया, बट इतना जरूर है कि वो फ्लूट का नाम सुन के मुझे लगा कि नहीं, आई शुड लर्न दिस, मुझे ये सीखना है। और क्लासिकल वोकल की ट्रेनिंग ऑलरेडी ली हुई थी, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट सीखना थोड़ा आसान हो गया था।
इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि वो समझ के मैं सीख रही थी कि अच्छा ये ऐसा ऐसा इसमें जो आवाजें होती हैं वो इस तरह की होती है। सो दिस इज हाउ मेरी जर्नी म्यूजिक की शुरू हो गई थी, एंड अब तक बस चालू है, सीख रही हूँ कुछ ना कुछ। बहुत अच्छा लगा ये अ, सुनकर। मैं एक बात ज़रूर जी कहना चाहूँगी तो कि कला चाहे कोई भी हो, संगीत हो, नृत्य हो, चाहे वो पेंटिंग हो, उसे कभी कोई कॉपी नहीं कर सकते। उसे हमें सीखना ही पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा यस एक यस, ईश्वर का वरदान होता है कला के लिए, कि कला के लोग है ना कला के, किसी का देख कुछ नहीं कर सकते, उसे सीखना होता है। क्या जी कहते हो आप जी इसके बारे जी सर्टेनली, जी जी जी, वो एक्चुअली जो भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट होता है वो कला से कनेक्ट हो पाता है। यू नो इट्स लाइक कोई भी कला से जुड़ना यानी भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाना, ऐसा मैं मानती हूँ। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने शुरुआत की है बैंड जो सूरत में ये सुनने में आया है, मैंने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी रिसर्च किया है आपके बारे में, कि पहली जी जी, महिला बैंड जो बनी है सूरत के अंदर, इससे कैसे आपको प्रेरणा मिली? कैसे आपने ये सोच बनाई कि मुझे एक बैंड बनाना है? और जो आपने अभी फिलहाल मैंने देखा है आपका हाल ही में नो से नो टू ड्रग्स जो स्ट्रीट यस। सॉन्ग था, उसपे आपने काम किया है। बहुत अच्छा लगा वो देखकर, समझकर, सोचकर। इस पे ज़रा नज़र डालिए। थैंक यू सो मच। अभी जो बैंड की मैं बात कहूंगी कि मैं लगभग पिछले 25 साल से ज्यादा से मैं शोज कर रही हूँ। पहले मैं डांस सिखाती थी, बिकॉज जब भी मैं म्यूजिक फील्ड में नहीं थी तभी मैं कोरियोग्राफर के तौर पे काम करती थी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस, एक्टिंग, ये सब। एंड सूरत के जो लोकल लेवल के ड्रामास वगैरह होते हैं, गुजरात लेवल की जो ड्रामा की कॉम्पिटिशन्स होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड, वो सारी कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट लेती थी, एंड ड्रामा में पार्ट लिया था, डांस में सिखाती थी, मेरे क्लासेस चलाती थी। सो बहुत सारी चीजें एक साथ कर रही थी, उसकी वजह से थोड़ा किसी को जस्टिफिकेशन ज्यादा नहीं दे पाती थी, ये थोड़ा करो, ये थोड़ा करो, ये थोड़ा करो। एंड अल्टीमेटली इट वाज यू नो एक प्रायोरिटी मुझे डिसाइड करनी थी कि मुझे क्या करना है। तो शोज में बहुत सालों से लगभग लास्ट 25-26 सालों से मैं शोज करवाती थी, मेरे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देके उनको कुछ ना कुछ सिखाना, उनको प्रेजेंट करना, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एंड चैरिटी शोज ही करती थी मैं हमेशा। सूरत के जितने भी स्पेशल स्कूल्स होते हैं, जैसे डेफ एंड डम या ब्लाइंड स्कूल, या वृद्धाश्रम में जाके उनको सिखाना, उनको डांस सिखाती थी, फिर उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आती थी। एंड ब्लाइंड बच्चों को डांस सिखाना, डेफ एंड डम बच्चों को डांस सिखाना, स्पेशल बच्चों जो होते हैं, मेंटली स्पेशल होते हैं, उनको डांस सिखाना और उनको स्टेज पे लेके आना, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ होते थे, बट जो भी जितना भी शो का फ्लो रहता था उसमें 2-3 आइटम्स में इन लोगों की भी रखती थी। तो इस तरह से 25 साल, ये जो 7 अगस्त का मैंने अभी रिसेंटली शो किया है, वो मेरा 25वां शो था। तो मुझे लगा जी, कि मुझे कुछ अलग करना है। और तभी मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल शो जो होते हैं, जनरली 2 या 3 घंटे के शोज होते हैं, तो आई फेल्ट कि मुझे 12 घंटे का एक शो करना है, क्योंकि संगीत में टोटल अगर स्वर देखे जाए तो 12 स्वर होते हैं, जो 7 सुर होते हैं उसके साथ 5 सपोर्टिंग स्वराज होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे 12 घंटे का कुछ करना है। और ऐसे ही मैंने थॉट मेरे स्टूडेंट जो है उनको डाला, एंड दे आर मतलब कोई जो बच्चे थे उनको तो थोड़ा समझ में नहीं आया, बट एक दो लेडीज थी जो मेरे स्टूडेंट ही हैं, तो उनको ही बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बट एट द सेम टाइम उनको लगा कि हाउ इट इज पॉसिबल, 12 घंटे मतलब क्या करवाएंगे म्यूजिक में 12 घंटे, जनरली म्यूजिक में 2 घंटे से ज्यादा अच्छा हो गया, बस बहुत गा लिया, ठीक है, कभी किसी ने लता जी के सॉन्ग्स गाए, कभी किसी ने रफी जी के सॉन्ग्स गाए, बट और से ज्यादा इसमें म्यूजिक में क्या हो सकता है, तो वही दैट वाज अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 12 घंटे लोगों को पकड़ के बैठ सकूं, या तो जो भी लोग आएंगे वो कम से कम 2-3 घंटे के लिए आएंगे और बैठ के जाएंगे, एंड दे विल एंजॉय।
तो मैंने पूरा एक प्लान शेड्यूल किया कि इतनी मिनट्स मुझे ये दिखाना है, इतनी मिनट्स या इतने घंटे मुझे ये दिखाना है। मैंने मेरी बेटी के साथ मिलके प्लान किया पूरा। मेरी बेटी को भी लगा कि मम्मी तू ये कर रही है, इट इज वेरी रिस्की। अगर हम्म, ये नहीं चला, ये कॉन्सेप्ट, मतलब अगर ये फ्लॉप हो गया तो आज तक जो भी गुडविल तुमने बनाई है वो शायद उसको धक्का पहुंच सके। मैंने बोला ये अगर मेरे मन में ये ख्याल आया है कि मुझे कुछ करना है, तो वो ऊपर वाले का ही कुछ इशारा है। एंड मेहनत मुझे करनी है, इतना मुझे पक्का पता है कि नहीं, उसके बगैर तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है मेहनत के बगैर। बट अभी ये कहीं ना कहीं मुझे वहां से इंट्यूशन मिला है, तो मुझे करना तो है ये। देन शी सेड ओके देन लेट्स डू इट। फिर हम लोग ने पूरा प्लान किया कि आधा घंटा हम इतना पार्ट म्यूजिक का बताएंगे, या क्लासिकल सॉन्ग्स, प्योर क्लासिकल जो रागास वगैरह होते हैं। उसके बाद क्लासिकल बेस्ड जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, फिर कव्वाली, गजल, सुगम संगीत, सूफी सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, जो वेस्टर्न सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को वो भी ज्यादा पसंद होता है। उसके अलावा मैंने इंटरनेशनल सॉन्ग्स भी सिलेक्ट किए, अरेबियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, फ्रेंच, बहुत सारी भाषाओं में, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी मैंने सॉन्ग्स करवाए, चूज किए कि चलो लेट्स डू। आई जस्ट वांटेड टू शो दैट म्यूजिक हैज वन लैंग्वेज करेक्ट। एंड इट इंक्लूड्स लव। म्यूजिक की कोई ऐसी परिभाषा नहीं होती, ऐसी कोई भाषा नहीं होती कि हाँ यही भाषा का संगीत है तो यही अच्छा लगेगा। संगीत की जो ब्यूटी है वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकती है। सो दैट इज वाई आई वांटेड कि मुझे ऐसा कुछ करना था। एंड मेरे बच्चों के साथ मैंने बहुत इंटरेक्ट किया, ये सारी बातें तय होगी कि अच्छा इतना इतना इतना। फिर लगा कि जो इंडिया का म्यूजिक में दो में मुख्य विभाग है, एक तो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, और दूसरा जो है फोक म्यूजिक, लोक संगीत जिसे कहते हैं। तो मैंने फोक संगीत को भी चूज किया। एंड फोक संगीत में ज्यादातर डांसेस बहुत अच्छे लगते हैं, तो फोक संगीत लाइव के साथ मैंने डांसेस इंक्लूड किए। एंड वो सारा मिला के बहुत सारा, मतलब मेरे पास कंटेंट रेडी हो गया था। फिर मुझे लगा कि और कुछ करना है। एंड बिकॉज मैं सिखाती हूँ बच्चों को, हारमोनियम सिखाती हूँ, फ्लूट सिखाती हूँ, वायलिन सिखाती हूँ, मतलब जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनके। तो मुझे लगा कि लेट्स मेक अ फीमेल बैंड। मैंने ज्यादातर मेरे पास लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। बट मसला ये था कि उन लोगों को पता नहीं था कुछ, क्योंकि मेरे पास वो क्लासिकल वोकल सीखते हैं, तो उन लोगों को हारमोनियम का नॉलेज था, बट ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज नहीं था कि कैसे बजाया जाए। एंड लिटरली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। जीरो से शुरुआत की हमने, कि चलो वायलिन सीखना है तो पहले उसको ढूंढो कि सारे गम कहाँ है। वो सारी जीरो से लेके हमने शुरुआत की, जिनको सबको पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट दे दिए कि आपको कौन सा बजाना है, आपको कौन सा बजाना है। एवरीवन हैज सिलेक्टेड। किसी ने गिटार सिलेक्ट किया, अभी जैसे गिटार तो मैं नहीं बजाती, या मैं जानती नहीं हूँ गिटार, जो जिस तरह से फ्लूट और वायलिन और हारमोनियम पे जितना मेरा हाथ है उतना मैं गिटार, मैंने कभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। एंड कीबोर्ड में वेस्टर्न नोट्स होते हैं, क्योंकि बच्चों को ही वो वेस्टर्न सॉन्ग्स बजाने थे, मतलब मैंने कहा था कि आपको ही बजाने पड़ेंगे और आपको ही गाने पड़ेंगे। देन वो गिटार और वायल कीबोर्ड की मैंने खुद बेसिक थोड़ा सीखा, नॉलेज लिया, फिर मैंने बच्चों को सिखाया, मेरी लड़कियों को। एंड दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड लर्निंग सारे ग, जिसको जिसको बोलते हैं एबीसीडी ऑफ इंग्लिश। लिटरली एकदम बेसिक से कि अच्छा ये सा है, ये रे है, ये। अभी तो उसमें और गाने ऐड करेंगे कि कितना, कौन से गाने पे कौन सा सुर आएगा, फिर वो सारा मर्ज करना। एंड इट वाज रियली अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी कि कैसे करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आया था कि बच्चों ने, मतलब दे से मैंने कहा कि देखो, इफ वी आर नॉट एबल टू डू, अभी से हम लोग बंद कर देते हैं, तो आई नॉट अनाउंस एनीथिंग कि फीमेल बैंड हमको नहीं करना, इट्स ओके। नहीं होता है तो होगा, तो हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हो जाएगा, डोंट टेक दिस थिंग लाइटली। बिकॉज अगर हम कर रहे हैं तो ये चीज सूरत में पहली बार होने वाली है, तो इट शुड बी बैंग, मतलब वो बहुत एक अलग लेवल पे होना चाहिए।
आई सेड कि मैं आप लोगों को आधे घंटे का टाइम देती हूँ। मैंने लिटरली बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया कि चलो आप म्यूजिक रूम में बैठो, आप सब अंदर अंदर बातें करो कि करना है या नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था ना कि रिहर्सल्स प्रैक्टिस के टाइम पे, अभी वो लोग भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, या जो भी मेरे उसमें फीमेल्स थी बैंड में, तो उनको भी अपने अपने सोशल में फीमेल्स को ज्यादा होता है कि आज ये है, आज सास है, आज ससुर है, आज मामा जी, काका जी एंड ऑल दैट। So I said, ki it's okay. Everyone has their own priorities, but at the same time, if we are doing one thing, then we have to be committed. So I'm करेक्ट। giving you half an hour time. You all decide कि क्या करना है. And genuinely मुझे लगा कि ये लोग सब मना कर देंगे. But then they said कि नहीं, we'll do it. हम लोग करेंगे. And 2 महीने, लगभग 1 डेढ़ महीना बाकी था तभी शो को. फिर हम लोग जो कमर कस के चालू हो गए सबके सब। एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर फीमेल बैंड का जो लगभग फीमेल बैंड की आइटम 35 to 40 मिनट्स की पूरी आइटम थी, जिसमें 21 गाने हम लोग ने इंक्लूड किए थे। देयर वर 21 सॉन्ग्स। एंड मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि फ्लूट तो मैं बजाती हूँ, तो फ्लूट मैंने मेरे बच्चों को सिखाया था। एंड तबला किसी को सिखाया, किसी को वायलिन सिखाया, किसी को कीबोर्ड सिखाया, किसी को गिटार सिखाया, किसी को माउथ ऑर्गन सिखाया, किसी को वो मेलोडी का जो आती है वो सिखाया। बट देन आई थॉट कि मैं क्या करूं फीमेल बैंड में, व्हाट शुड आई डू, देयर शुड बी सम चैलेंजिंग थिंग फॉर मी आल्सो। कि ऐसा नहीं है कि चलो ये तो मुझे इसमें से बहुत कुछ आता था, बट जैसे बच्चों के लिए ये चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी कुछ ऐसी चीज चैलेंजिंग होनी चाहिए, so that I can also give my 100% और I can tell my students कि नहीं देखिए, ये हम सबको मिलके करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के ऊपर बर्डन है। देन मैंने चूज किया ड्रम्स। मैंने ड्रम्स जो मुझे कभी भी वेस्टर्न ज्यादा म्यूजिक धान धान बोल अच्छा, मतलब आई हैव नॉट बीन दैट कीन फॉर दैट, बट देन आई थॉट कि हाँ देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स की जिसमें ड्रम्स की भी जरूरत पड़ेगी। सो ड्रम क्लास में मैं गई, लगभग 1 आध महीना मैंने वहां पे ड्रम्स सीखा, जो बेसिक थिंग्स थी आई हैव लर्न दैट। एंड इस तरह मेरी एक फ्रेंड है, वो सितार बजाती है बहुत खूबसूरत, तो इस तरह से पूरा हमारा बैंड तैयार हुआ। वी वर 16 ऑफ देम, 16 जन का ये बैंड था। एंड दैट वाज द बिगेस्ट हिट ऑफ द शो। शो का बहुत सुपरहिट, वन ऑफ द मोस्ट सुपरहिट आइटम था ये फीमेल बैंड, जो बहुत ज्यादा सराहा गया सबसे। एंड बैंड की आइटम खत्म होने के बाद बैक स्टेज में जब हम सब मिले, लिटरली बच्चियां रो रही थी जोर जोर के, वाई वी हैव डन इट, हम लोग ने करके दिखाया। एंड दैट वाज द बिगेस्ट पार्ट, द बिगेस्ट सक्सेस आई कैन से, कि मुझे फिर वो कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि करते करते ये 12 घंटे का जो भी हम लोग प्लान कर रहे थे, उसमें रात को ऑलमोस्ट आई यूज टू, मैं लगभग 2 बजे तक रोज जाग के कि इनको ये गाना देना है, इनको ये गाना देना है, इनको इनकी आवाज में ये गाना ज्यादा सूट होगा, या इनकी रेंज इतनी नहीं है, तो ऑल दिस थिंग्स वो मेरी अकेली का काम था। बिकॉज माई डॉटर इज मैरिड, तो वो तो उसके घर पे होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर 2 पीपल जिन्होंने मुझे बहुत मदद की। एक है पीयूष जी, जिन्होंने मुझे पैड सिखाया, हमको सिखाया, जो ऑक्टो पैड होता है वो हमें सिखाया, हमें लाकर दिया वो इंस्ट्रूमेंट। एंड दूसरे है राम सर, जो राम जी है, राम लिमजे नाम है उनका, उन्होंने पूरे जो 21 गाने को कैसे मर्ज करते हैं कॉर्ड्स, बिकॉज वेस्टर्न म्यूजिक मैं नहीं जानती थी, तो वो सारा कॉर्ड्स कैसे कंबाइन करना, गानों को कैसे मर्ज करना, वो सारा सिखाया। एंड मेरे साथ जो मेरे टीम में थे, एक जूही एंड नेहा, उन्होंने भी बहुत ज्यादा दे वर ऑलवेज, क्योंकि दे आर लेडीज, तो बच्चों को संभालना एंड एवरीथिंग, कि चलो इनको ये सिखा दो, इनको ये सिखा दो। इट वाज रियली अ टीम वर्क। मैं अभी बोल रही हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कहाँ कोई अटकता है, एंड बच्चे देवर कि चलो हम हेल्प करते हैं, चलो अच्छा इधर ये प्रॉब्लम है, चलो मैं सॉल्व करती हूँ, मैं यहाँ पे मदद करती हूँ। आई हैव स्टार्टेड गिविंग देम प्रैक्टिस। 3 घंटे से मैंने शुरू किया कि ये संडे को हम 3 घंटे के लिए नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करेंगे। फिर दूसरे संडे हम लोग ने 6 घंटे रखा प्रैक्टिस, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस, उसमें सिर्फ वॉशरूम का ब्रेक एंड पानी पीने का ब्रेक। 6 घंटे कुछ खाना नहीं है,
कुछ पीना नहीं है, नथिंग डूइंग। उसके बाद मैंने 9 आवर्स का ब्रेक नॉन स्टॉप प्रैक्टिस रखी, जिसमें 2 ब्रेक मैंने छोटे छोटे रखे थे। और फिर 12 घंटे की प्रैक्टिस लगभग मैंने 3 से 4 बार रखी थी, जिसमें 2 या 3 ऐसे छोटे छोटे ब्रेक देकर, सो दैट उनको शो के दिन उनको वो तकलीफ ना हो कि 12 घंटे एक साथ हम कैसे निकालेंगे। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट 12 घंटे, बिकॉज वहां शो शुरू होने से पहले 2-3 घंटे पहले पहुंच जाना पड़ेगा, एंड यू नो आफ्टर द शो ऑल्सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। देन इट वर्कड। पता नहीं कैसे सुबह हम लोग सब 10 बजे से शो शुरू होने वाला था, एंड हम लोग 6:30 बजे ऑडिटोरियम पहुंच गए थे। एवरीवन वाज वेरी मच चार्ज, एंड पता ही नहीं चला कि 12 घंटे, इट वाज अ शो ऑफ 13 आवर्स 8 मिनट का रिकॉर्ड कायम हुआ है। उसमें भी हम लोग ने एंड में तो बहुत सारा कट कर दिया कि नहीं और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ओवरऑल शो था 13 घंटे का और 8 मिनट का, एंड वी डिडंट कम टू नो। सो दिस इज हाउ फीमेल बैंड जो है वो यहाँ पे आया। एंड जो ये एनजीओ की जो आप नो टू ड्रग्स की जो बात मुझसे कह रहे हैं, सूरत में एक एनजीओ है, उनके साथ उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई हम लोग ऐसे रोड शो करते हैं एवरी टाइम, तो वी वुड लाइक टू यू नो आपको हम इनवाइट करना चाहेंगे कि एक दिस इज वेरी यूनिक थिंग कि सूरत में फीमेल बैंड पहली बार है, तो लोग अट्रैक्ट होके वहां पे आएंगे। इट वाज अ रोड शो, कंप्लीटली अ रोड शो, एंड पीपल विल, एक तो फीमेल बैंड कुछ अलग है वो सोच के भी लोग आएंगे, एंड जितने लोग आएंगे वो इतनी ज्यादा अवेयरनेस होगी कि से नो टू ड्रग्स। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो कि वहां पे बहुत सारी और भी उन्होंने एक्टिविटीज रखी थी ये बहुत उम्दा कार्य के लिए, बट दिस इज हाउ वी वर द वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। बहुत अच्छा लगा। मैं आप मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपके बारे में जो सोच रही सुन रही हूँ। जिस दिन ये वीडियो रिलीज होगा 26 तारीख को, आपका ये वीडियो मैं रिलीज करूंगी 26 फरवरी को। मैं शब्द नहीं बता सकती, शब्द ढूंढ नहीं पा रही कि मैं क्या कहूँ आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ कि कला थैंक यू। जिस तरह से आपने सीखा है। और मैं भी संगीत सीख रही थी। मेरे गुरु जी दिलीप विस्फुटे जी ने कहा था कि एक सा सीखने में एक जन्म भी कम पड़ता है, सिर्फ एक सा सीखने में संगीत कितना गहरा है। तो यस। आपने फ्लूट सीखा है, वायलिन सीखा है, हारमोनियम सीखा है। तो इट्स नॉट अ इजी जर्नी ऑफ योर लाइफ टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। एंड फैमिली को संभालकर, अपनी बेटी को संभालकर, उसके साथ इतना बड़ा बैंड बनाकर, सिर्फ आपने बैंड नहीं बनाया, मुझे लग रहा है कि आपने हर उस महिला को एक प्रेरणा दी है कि फीमेल कैन डू वॉट एवर शी थिंक्स। वो सिर्फ इमेजिन करती है ना, और वो उसे वो 100% पूरा करने का वो पूरी कोशिश करती है और उसे पूरा करती ही है बिना। तो आपका ये जो जर्नी था 12 घंटे का, जो आपने जिस प्रकार से बैंड का जो शो किया था, तो उसके लिए आपने कितने जी। दिन की तैयारी की थी? कितने दिन पहले आपने तैयारी करी थी? ये मुझे ख्याल आया था दिसंबर में कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो मैंने सोचा था कि जून महीने में 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे होता है, तो हम्म, आई था कि मैं म्यूजिक डे पे लॉन्च करूँ ये जून में। एंड कि यू नो एक एक रीजन भी रहेगा कि ओके देयर इज अ म्यूजिक डे, और हमने ऐसा कुछ हटके किया। बट जनरली क्या होता है कि मई मंथ में सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट इधर उधर जाते हैं, एंड वो प्रैक्टिस पूरी ठीक से हो नहीं पाई। मतलब मुझे लगा कि नहीं, मई महीने में थोड़े हर्डल्स आएंगे, सो आई शिफ्टेड दैट ऑन 7 अगस्त। सो अच्छा। ऑलमोस्ट मुझे 6 से 8 महीने लग गए, और मिनिमम 6 मंथ्स आई कैन से। एंड हाँ, उसमें बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा उसमें भाग है। ख्याल मेरा जी, था उसको कैसे आगे तक पहुंचाना म्यूजिकली, यू नो कि जो जितने भी अपने विचार होते हैं वो मैंने और मेरी बेटी ने मिलके पूरा उसको किया था कि इतना पार्ट इसका होना चाहिए, इतना पार्ट इसका होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सीमा जी, नथिंग इज इजी, यू नो कि ऐसा कोई भी काम है जो इजी नहीं है अगर आपको अपने फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है तो। In that बिल्कुल। case, my husband
राजीव, ही हैज बीन ऑलवेज मेरे साथ, मतलब मेरा घर में ऐसा था कि मेरे क्लासेस जो है मेरे घर पे ही चलते हैं। तो इतना बड़ा, इतने घंटों का काम करना, तो कोई बालकनी में जाके रियाज करता है, कोई बेडरूम में जाके बैठे हैं, हमारे बेडरूम में सारे बच्चे बैठे हैं, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई यहाँ पे एक जगह पे, कोई किचन में जाके वॉशिंग मशीन पे जाके चेयर पे लेके बैठ जाता है। एंड एक लड़की वॉशिंग मशीन पे जाके ये टैब रख के ऑनलाइन, जो मेरी स्टूडेंट है उसको सिखा रही थी कि अच्छा ये हम लोग उसके बाद ये गाएंगे, उसके बाद ये गाएंगे। एंड द सीन, अभी मैं बोल रही हूँ ना कि इट वाज अमेजिंग कि पूरे घर में जो वाइब्रेशन थी। एंड माय हस्बैंड, ही यूज्ड टू टेक एवरीवन, बेटा तुमने ये खाया, चलो पहले खाना खा लो, पहले बिस्किट ले लो, अच्छा पहले नींबू पानी पी लो। सो ही वाज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मतलब दैट वाज अमेजिंग। मैं मेरे उसमें खोई हूँ कि अच्छा ये नेक्स्ट, ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है। एंड ही वाज द वन, उन्होंने हमेशा बाकी की सारी चीजों को संभाला है। बाहर के जितने भी काम, गेस्ट को बुलाना, ये करना, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि 12 घंटे ही वॉज ऑल्सो ऑलवेज देयर। सुबह हम लोग 6 बजे पहुंच गए थे और रात को 12 बजे घर पे वहां से निकले 12:30 1 o'clock। तो ही वॉज स्टैंडिंग ऑल द टाइम ऑन द स्टेज, मतलब स्टेज के पीछे या ऑडिटोरियम में ऑडियंस के साथ। उसके अलावा मेरे पापा जो है, माय फादर इन लॉ, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई भाभी, मतलब एवरीवन, माय सिस्टर, दे वर लाइक ओके यू जस्ट डू, वी आर देयर, तू बस कर, हम लोग सब तेरे साथ है। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एवरीवन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी कि बस तू कर। मेरे जो ससुर जी हैं वो भी पूरे के पूरे 12 घंटे ऑडिटोरियम में बैठे रहे कि नहीं मैं आज यहाँ से नहीं हिलूंगा। ही डिड नॉट इवन हैव फूड, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तेरा एक भी मुझे मिस नहीं करना है कि जो तूने इतने महीनों की मेहनत की है, आई जस्ट वांट टू बी देयर सो दैट आई कैन ब्लेस यू, मेरे ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। सो ये सारी चीजें अगर नहीं होती सीमा जी, तो इट वाज इम्पॉसिबल। क्योंकि आपको जब तक अपने फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तो आप कुछ भी करने का कितना भी चाहे सोच लो, बट प्रैक्टिकली उसको वहां पे लाना, लास्ट कुछ 1 1.5 महीने में तो ऐसा हुआ था कि आई वॉज नॉट एबल टू, बिल्कुल घर पे ध्यान नहीं रहता था मेरा। एंड माई हस्बैंड कि चलो आज खाना का कुछ टेंशन मत करो। एंड मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चों के पेरेंट्स हैं, यू नो दे यूज टू ब्रिंग फूड फॉर मी कि नहीं चलो आप, हम लोग खाना लेके आते हैं, आप खाने का टेंशन मत करो। तो ये सारी चीजें अगर सबका मिला के नहीं होता है ना, जैसे मैंने कहा कि मेरे म्यूजिक के जो फ्रेंड है पीयूष एंड राम, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा ज्यादा सपोर्ट दिया कि चलो हाँ हम ऐसा करते हैं, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, वो है इन लाइन में और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे। तो दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू मी। सो ये सारी चीजें मिला के जो भी था आई कुड डू दैट, ऐसा था। माय ब्रदर, उनका भी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, बट ही ऑल्सो केम कि नहीं भाई मैं आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर यू। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहुत सारी चीजें डिस्कस करना कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। सो ये सारी चीजें बहुत माइंड रखती है। इवन माई, मेरे जो दामाद जी हैं उनका भी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, नैतिक नाम है उनका। तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फोन से अच्छा ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे, वहां पे जाना है, क्या करना है। सो देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल कनेक्टेड विथ मी who have given me support कि नहीं, बस तुमने शुरू किया है तो विल डू इट नाउ। सूरत के लिए पता है एक बात जरूर कहूंगी, लोग कहते हैं सूरत सोना नी मूरत, सूरत નું यस। जमण, काशी નું ये एक हाँ। बहुत फेमस लाइन है हम गुजरातियों के लिए। लेकिन आज उस पे करेक्ट। एक लाइन होगी, सूरत सोनानी मूरत अने सूरत स्वरों शहर। और इसको बताया है आप जैसी प्रतिभाशाली संगीत की महिला ने, इसमें सूरत को स्वरों का शहर बनाने के लिए जो उपलब्धि आपने सूरत को भी दी है, स्वयं तो थैंक यू। सीख तो आपने इतनी सारी महिलाओं को आपने प्रेरणा दी है कि सिर्फ सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, दिशा आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म पर लाना हम सबके मिलकर जो काम होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, लेकिन डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, साथ मिलकर जी टीम वर्क जी। होके फैमिली के सपोर्ट के साथ। देखिए हिमाली जी, मुझे ऐसा लगता है हिमाली जी कि जब हम कुछ सही करते हैं ना, तो ईश्वर का साथ हमेशा रहता है। मुश्किल आती है क्योंकि परीक्षा ईश्वर लेता है ताकि हम लोग और यस। मजबूत हो जाए कार्य को
सक्षम करने के लिए, Exactly. पूरा करने के लिए। क्योंकि जितनी परीक्षाएँ Correct. देंगे ना, उतना तब के ही और निखरता है। तो मुझे लगता है कि बहुत आप अभी कैरेट से भी ज़्यादा कैरेट की खरा सोना बनकर उभरी हो, जब आपने 12 घंटे का शो जब सोचा सोचा था, इसलिए आपको इतना जी, तपना पड़ा था। तो खरा सोना उभर कर उसकी चमक आज हम उसे देख पा रहे हैं, उसकी गर्माहट आज हमें फ़ील हो रहा है कि आपने कितना अपने आप को उस आग में जलाया होगा, तब जाकर एक पूरी टीम उभर कर आई और आज आप जैसे व्यक्तित्व को आज मैं अपने चैनल पर ला पाई हूँ और थैंक बहुत यू मच। खुशकिस्मत मैं अपने आप को समझती हूँ कि हमारे गुजरात में, दक्षिण गुजरात में जो सूरत शहर जी, है, उसमें सूरत की तो बात करें उतना कम है। हमारे पास टेक्सटाइल्स है, डायमंड्स है, जरदोशी वर्क है। जी, दक्षिण गुजरात की बात करें तो जी, सबसे ज़्यादा ओवरब्रिज भी सूरत में बना है, फ्लाईओवर। तो अब हो गया है सूरत यस, स्वरों का शहर। ये भी आप दैट्स जाते हैं। वंडरफुल। तो दैट्स रियली ग्रेट, रियली वंडरफुल। बहुत सुंदर नाम दिया है आपने। बट मैं जैसे मैंने कहा कि मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट हूँ। मैं ना ही ओनली म्यूजिक में बहुत कुछ और भी सीखना चाहती हूँ, सीख भी रही हूँ। ये शो में पर्टिकुलर मेरे दिमाग में एक चीज और भी थी कि प्रोफेशनल सिंगर्स जो होते हैं या प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके शोज होते रहते हैं, उनको लोग बुलाते हैं कि चलो भाई यहाँ पे शो है, जो पेड होते हैं कि चलो आपको पैसे देने हैं और आपको मतलब इट इज लाइक उनके बिजनेस होते हैं। बट मेरे लिए मुझे ये कुछ, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा 25वां शो था, तो मुझे कुछ अलग करना था, तो ये 12 घंटे का तो मैंने सोचा। बट उसके अलावा मैंने सोचा कि मुझे नॉन प्रोफेशनल आर्टिस्ट को स्टेज पे लाना है, जिन्होंने कभी प्रोफेशनली आगे नहीं गाया है, बट गाने की तमन्ना कहीं रही हो कि हाँ मुझे भी गाना है। ये ऐसे मेरे आसपास भी सारे म्यूजिशियंस हो और म्यूजिशियंस के साथ मैं भी माइक पकड़ के गाऊं। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया या ऐसे लोगों को पूछा कि भाई आप करना चाहेंगे, जिसमें सीनियर सिटीजन की एक पूरा राउंड था, जिसमें बड़े से बड़े व्यक्ति जो थे वो 84 इयर्स के थे। उन्होंने भी स्टेज पे गाना, मतलब देर वर सीनियर सिटीजन का पूरा जो राउंड था लगभग 1 घंटे का राउंड था। उसमें लगभग 12 से 13 सीनियर सिटीजन्स ने पार्ट लिया था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, दे वर अमेजिंग। मतलब लग रहा था कि हाँ उनको भी जीना है, यू नो। रिहर्सल्स के टाइम पे मुझे फील हो रहा था कि दे वर एंजॉयिंग कि माय गॉड, अच्छा मेरे लिए बांसुरी भी बजेगी, अच्छा मेरे लिए वो ड्रम भी बजेगा, ओहो कीबोर्ड के साथ मुझे गाना है, मुझे माइक पे गाना है। ऑलरेडी वो लोग थोड़ा बहुत गा लेते थे या गाने की तमन्ना रखते थे, बट ये सारी चीजें जो रिहर्सल्स में मैं खुशियां देखती थी उनके चेहरे पे। दूसरे कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे थे जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है, अंदर चाह बहुत होती है। जैसे एक हॉस्पिटल में मैं गई थी कुछ किसी रिश्तेदार को मिलने, वहां पे एक लड़की बहुत सुंदर गाती थी। तो उसको मैंने पूछा कि वुड यू लाइक टू टेक पार्ट, आपको शो में पार्ट लेना है। वो जो आया मासी का जो काम करती है ना, दैट शी वाज डूइंग दैट वर्क इन हॉस्पिटल। फिर एक लड़का जो है वो भी बहुत मेहनत करके कमाने की कोशिश करता है। सो ही वॉज ऑल्सो सिंगिंग गुड। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया कि जिनके पास मॉनेटरी कोई सपोर्ट नहीं हो, बट उनको कुछ करना है। तो आई फाउंड दीज काइंड ऑफ पीपल एंड उनको मैं स्टेज पे लेके आई। दैट वाज अगेन अ वेरी सेटिस्फैक्टरी पार्ट। एट द एंड ऑफ द शो मुझे लगा कि हाँ कुछ मैंने अच्छा करने की कोशिश की, नॉट ओनली कला के क्षेत्र में कुछ दिखाने का, बट एथिकली भी या मेरे मॉरल्स भी कुछ मैंने ऐसे उनको अपग्रेड किया कि चलो मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं। सो मेरे ये शो में 4 साल से लेके 84 साल यानी 4 to 84 का एज ग्रुप था पार्टिसिपेंट के तौर पे। दूसरा कि ये जब मैं कर रही थी ये तो किसी ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू मेक अ रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड आप क्यों नहीं बनाते हो। मुझे लगा रिकॉर्ड वेकॉर्ड के लिए तो मुझे क्या है, उसकी क्या प्रोसेस होती है कुछ भी नहीं पता है। बट देन समहाउ आई गॉट कनेक्टेड विद इंडियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड, और वहां से जजेस आए थे इंडियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड से, एंड दे हैव बीन देयर फॉर ऑल दिस 13 hours। एंड आफ्टर द शो आई हैव बीन सर्टिफाइड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ मेरा और मेरे क्लास का और हम सबकी मेहनत का। एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया वालों ने भी हमें इनवाइट किया, एंड दे आल्सो सर्टिफिकेट्स दिए हमको, मेडल्स दिए।
सो ये सारी चीजें आई हैव नॉट थॉट कि जब भी मैंने चालू किया था कि ये इंटेंशन रख के नहीं चालू किया था कि हाँ मैं कुछ रिकॉर्ड बनाती हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। जस्ट शुरू किया और चीजें अपने आप सामने आने लगी थी। देयर वर अ लॉट ऑफ मॉनेटरीली भी थोड़ा प्रॉब्लम था कि इतना बड़ा शो करना है, ऑब्वियसली इतने आर्टिस्ट को संभालना एंड खर्चा पूरे दिन का, शो का खर्चा एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो बट चीजें अपने आप एंड 3 दिन पहले मेरे पास ऐसा कोई फंडिंग नहीं था कि मैं हाउ विल आई मैनेज द फंडिंग, यू नो, इतना फंडिंग मेरे पास नहीं हुआ था कि मैं ये पूरे शो का खर्चा उठा पाऊं। लिटरली 3 दिन पहले सामने से कुछ कॉल्स आते हैं, अच्छा आपका ये पार्ट मैं देख लूंगी, आपका ये पार्ट हम देख लेंगे, एंड अननोन पीपल के फोन आ रहे हैं मुझे। सो इट इज ऑल अबाउट यू नो भगवान पे भरोसा रखना कि हाँ यू नो उन्होंने चालू करवाया है तो पूरा भी वही करेगा। तो तो यही बहुत सारी सही, चीजें। मान लीजिए गीता में बहुत सही लिखा है कि कर्म किए जा, फल की अपेक्षा मत कर। ऑल इज वेल, एग्जैक्टली। जस्ट वर्क, डेडिकेशन है, काम करो, कर्म किए जाओ, अपने आप वो संपूर्ण हो जाएगा। ईश्वर हमारे साथ हमेशा है, हर पल है। बस दिशा सही जी होनी चाहिए, सोच हमारी सही होनी चाहिए, तो सब कुछ जी पॉसिबल। जी। बिकॉज के अंदर आप आई और एम को अलग कर दो तो वो कहलाएगा आई एम पॉसिबल। ये मैं फॉलो करती हूँ यस, चीजों को। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आई टू फॉलो दिस। अब बहुत ही सोशल ज्यादा अच्छी बात। योगदान समझ, सोशल मीडिया कितना योगदान आपको दे सकता है, या आज की युवा वर्ग, मैं कहूंगी कि हमारे पास दो वर्ग के लोग होते हैं। एक ऐसे वर्ग के लोग जी होते हैं जो सोशल मीडिया को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, और एक ऐसे वर्ग के जैसे कि आप हो, मैं हूँ, आपके साथ जुड़े हुए जो टीम जी है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ टीम है, सोशल मीडिया को भरपूर उसका उपयोग करते हैं सकारात्मक कार्यों के लिए, अच्छी दिशा में, अच्छी जी सोच रखकर। तो आप सोशल मीडिया को क्या सोच रखती हो कि हमारे जो युवा वर्ग है, जो कुछ युवा वर्ग, मैं जी सब नहीं कहूंगी पूरा वर्ग गलत दिशा में जा रहा है, कुछ वर्ग, एक कुछ छोटा सा अंश जो गलत दिशा में जाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हो कि किस प्रकार से उन पर अंकुश लगाओ या फिर नियंत्रित करो? देखिए, अंकुश लगाना युवा वर्ग के लिए, हमारे लिए एक इम्पॉसिबल का टास्क है, लेकिन मैं जी। समझती हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर आप बहुत। इतने सारे अच्छे काम आप टाइम टू टाइम डालते रहो कि वो लोग, क्योंकि जब व्यक्ति बिजी होता है ना, जी कुछ अच्छा में होता है ना व्यस्त, या अपने हॉबीज को लेके जब व्यस्त होता है ना, तो वो कभी भी गलत काम की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। लोग फ्री है तभी गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आप उनको फ्री मत रहने दो, उनके करेक्ट हॉबीज करेक्ट। मैं उसको। 2-3 बातें, हाँ जी 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 जी, सॉरी आपकी आवाज करी तो मुझे पता नहीं चला। हाँ, मैं कह रही हूँ कि युवा वर्ग जी। को आप हॉबीज के लिए इतना व्यस्त कर दो, ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो कि 24 घंटे में से कम 18 घंटा वो अपने हॉबीज को लेके व्यस्त रहे, पढ़ाई लिखाई के बाद। और तो वो गलत दिशा में जाएगा ही नहीं, गलत काम करने का समय ही नहीं नहीं बचेगा, तो जाएंगे। कहाँ से करेगा वो? बहुत ही सच्ची बात कही है आपने। मैं यहाँ पे 2-3 बातें करना चाहूंगी कि जी, एक तो जो हमारी पीढ़ी है तभी सोशल मीडिया जैसा कुछ नहीं था, गूगल कुछ नहीं था। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तभी रेडियो बहुत सुना करती थी, एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे रेडियो पे गाना आना एंड ऑल दैट। तो कभी भी कोई पसंदीदा सॉन्ग था तो मैं जल्दी जल्दी डायरी में लिखती थी, और मानो कि हाँ, वो सॉन्ग बाकी रह गया है क्योंकि वो तो गाते हैं फटाफट, हम इतना जल्दी लिख नहीं पाते। तो जब तक वो दूसरी बार वो गाना नहीं आ जाता तब तक वी हैड टू वेट कि हमको इंतजार करना पड़ता। और कभी रेडियो में तो कभी भी गाना कौन सा भी कभी भी आ सकता है। मुझे याद है कि वो ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, मैंने एक हाँ, पैराग्राफ थोड़ा बहुत लिखा, फिर वो तो शब्द चले गए, और तभी वो तो गाना आता नहीं था तभी, क्योंकि नए नए गाने सारे सुनते जाते थे। एंड वेट करना पड़ता था कि नेक्स्ट टाइम कभी आएगा। स्कूल में जाती थी, स्कूल के आने के बाद सीधा रेडियो स्टार्ट करो। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में भी यू नो अंडर जो मिडिल क्लास लोग, मैं आई बोर्न एंड रेज्ड अप इन दैट सिचुएशन एंड ऑल, बट फिर भी अपनी हॉबी को, मुझे तभी पता नहीं था कि मुझे संगीत इतना अच्छा लगता है। वो मुझे पता चला शायद मेरी बेटी के जन्म के बाद, मेरी बेटी ने जब शुरू किया तभी मुझे लगा। बट ये सारी सुविधाएं अगर हमारे पास होती तो हम शायद आज कोई और लेवल पे होते। यही मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, अब यही मैं बच्चों को बोलना चाहती हूँ आजकल की पीढ़ी को, कि आज तो कुछ यहाँ पे आया और सीधा मोबाइल पे गूगल बाबा की जय बोल के शुरा यू इमीडिएटली नॉट इवन एक सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता है आप लोगों को कुछ भी पाने के लिए। बिल्कुल।
ऐसी सारी सहूलियत हमारे टाइम पे नहीं थी। तो ये जो भी सोशल मीडिया आपको यू आर ब्लेस्ड विद दिस सेंचुरी की आप इस ऐसे सालों में जहाँ पे टेक्नोलॉजी हाईएस्ट पीक पर है, वहां पे उनका भरपूर अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। सेकेंड थिंग कि लगभग 84 लाख जन्म के बाद एक जन्म मिलता है इंसान का, उसको बहुत ज्यादा वसूल करना होता है कि नहीं चलो। इवन माय मम्मी, अभी भी मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी में मास्टर्स मैंने किया है, तो अभी भी उसमें आगे पीएचडी कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती है कि कितना पढ़ेगी, क्या करेगी? तो मैं मम्मी को वही बोलती हूँ कि मम्मी 84 लाख जन्म के बाद एक कितना मिला है, सीख लेने दे मुझे, जितना सीखा मुझे, आई वॉन्ट टू लर्न जितना मैं सीख पाऊँ। तो सीखोगे जब तक आपको आपकी लाइफ सेट है, एक गोल सेट रहेगा कि ओके मुझे ये करना है, दिन के गोल में ये बनाना है। सेकेंड थिंग, मैं ये एक बात मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ कि एक चीज होती है कि मुझे ये करना है, लेकिन ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मेरी सास, मेरे मामा जी, मेरे बेटा, मेरा बच्चा, मेरा वो एक लेकिन यहाँ पे होता है कि आई वॉन्ट टू डू दिस, बट सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो इज इक्वल टू, आप जहाँ पे हो वहीं पे हो, आप कहीं भी आगे नहीं बढ़े। ठीक है, वो लेकिन की जगह आपने यहाँ पे रखी है। ये पूरे स्टेटमेंट में मुझे ये करना है लेकिन सो एंड सो प्रॉब्लम, अगर वो ही लेकिन की जगह हम वाक्य शुरू करने से पहले रखते हैं, लेकिन मुझे ये करना है, तो वो करेक्ट। जो सारा सास ससुर बेटा बेटी बाकी की जो प्रायोरिटी इधर आ जाएगी, ये साइड पे आ जाएगी। ओके, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ये करना है इज इक्वल टू सक्सेस। करेक्ट। तभी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। इफ यू आर पुटिंग योर बट हियर, देन सक्सेस, एंड हियर, देन आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे, कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते। इट इज लाइक दैट। एंड बड़ा मजा आता है ये सारी चीजें हर्डल्स को पार करते हुए। व्हेन अगर आज की युवा पीढ़ी को कहूँ या छोटे बच्चों को कहूँ, ऐसे स्कूल में रेसिंग होती है, तो कितने सारे कि वी जस्ट फाइट कि अरे नहीं नहीं हमको जीतना है, जीतना है, जीतना है। तो वो जब भी गोल आपके दिमाग में होता है, तो दैट काइंड ऑफ गोल सेट लेकर अगर आप अपने शौक को, जैसे आपने कहा कि अपनी हॉबी के लिए आप अगर काम करते हैं, तो इट वर्क्स अ लॉट। उससे बहुत फर्क पड़ता है कि अपनी हॉबी को टाइम दो ना, वॉट एवर यू लाइक यू डू। सेम थिंग इट अप्लाइज विद एवरीवन, ऑल एज ग्रुप के लिए है। स्पेशली आफ्टर 40-45 बच्चे बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे बाहर गांव जाते हैं सीखने के लिए, या तो शादियां हो जाती है, फिर बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर यहाँ रह गए बूढ़ा बूढ़ी अराउंड 50 के आसपास, 50-60 के आसपास। अगर जिंदगी में कोई शौक नहीं पाला होगा, तो आपका समय आप कैसे बिताओगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी एज ग्रुप हो, अपना एक शौक पालना चाहिए। बिल्कुल। अपना एक चहीती चीज जो है, जो आपको अच्छी लगती हो, उसको आपको आगे तक लेके जाना है, तो ही आप अच्छे से जी पाओगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। हिमालय जी, अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मुझे लगता है कि मोक्ष प्राप्ति करने का जो सही मार्ग है वो यही है। अपने हॉबीज के प्रति आप सकारात्मक रहिए। जीवन भर अपने आप को एक विद्यार्थी बनाकर रखिए और मोक्ष इसी जीवन में मिल जाएगा, आपको इसी जन्म में आपको मिल जाएगा। मोक्ष के लिए आपको 56 भोग खिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने अपने पेरेंट्स को सही समय पर कर्तव्य निभाना सीख लिया, समाज के प्रति कर्तव्य निभाना सीख लिया, मुझे लगता है कि ईश्वर की पूजा वही सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी। और जिस तरह से आपने समाज के लिए जो आप संगीत के माध्यम से जो काम कर रहे हो, असली में आई थिंक यही मोक्ष है। आपको मोक्ष इसी जन्म में, इसी समय आपको मिल चुका है, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत बड़ी तो बहुत नहीं हूँ, बहुत नहीं कर सकती, लेकिन जो नहीं। बातें सुन के जो मैंने फील किया है, दिस इज द रियल मोक्ष यू आर गेटिंग एट बिफोर यू गो समवेयर आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसके करेक्ट। पहले ही मोक्ष मिल चुका है, ऐसा मुझे फील होता है। अब अंत में क्या कहना एक चाहती हूँ? बस एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है कि कुछ करने की एक जन्म सफल होना।
ये कहते हैं ना कि इतने चेहरों में अपने चेहरे की पहचान तो हो, वो गाना था, इतने चेहरे में अपने चेहरे की पहचान तो हो। कि यानी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग कहे कि ओके फाइन, ये इसने कुछ ऐसा किया है। सो दैट लेवल का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटीज भगवान ने दी है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हमको बनाया है इंसानों को। सो इतना प्यारा, इतनी प्यारी लाइफ दी है, तो सर्टेनली उसको हमें यूज करना चाहिए। हम देखते हैं कि कितने दिव्यांग जो लोग होते हैं वो भी कुछ ना कुछ बहुत अलग करके दिखाते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें पूरी तरह से हम लोग स्वस्थ है, तो उसका हमें बहुत ज्यादा अच्छे से उपयोग करना चाहिए। और अंत में यही कहूंगी कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड ऑलमाइटी। मैं भगवान की बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूड पे ऐसे मौके दिए उन्होंने। और मेरे फैमिली को मैं दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी फैमिली को, क्लोज फ्रेंड्स को, एंड जिन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया है या जिन्होंने भी मेरी कला को समझा है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन। एंड ऑफ कोर्स एंड में आपका भी बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कि हम लोग इस तरह से मिले, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। अंत में मुझे सिर्फ एक सरगम सुना दीजिए। मैं सरगम की, मैं भी खुद संगीत सीखती हूँ, लेकिन पापा की डेथ के बाद वो जो एक, मैं कह रही इफ एंड बट्स तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे कंधों पर जी इतनी जी जिम्मेदारियां, माँ अकेली है। और वो एक जो समय नहीं दे पाई, कि मीडिया का काम इतना ज्यादा है। मैं समय, और जी। सिर्फ सर्टिफिकेट भी नहीं सीखना है, मुझे उसको सीखना है। मैंने 8 राग कंप्लीट कर लिया है क्लासिकल वोकल में, 16 राग मेरा वाओ, बाकी रह गया, तो मैं भी कंटिन्यू करूंगी अप्रैल से। ये मैंने ठान वेरी। रखा है कि लेकिन को पहले रख दिया है, लेकिन मुझे करना है। ये बात मैं आपकी आज से फॉलो कर, ये बहुत सही है। लेकिन कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे करना है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। और करेक्ट आप करेक्ट। मुझे थोड़ा-सा एक कोई सरगम का कोई टुकड़ा सा सुना दीजिए अंत में, इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले। मैं फ्लूट अलग। पे कुछ सुनाना चाहूंगी। जी, जी, बिल्कुल। ऑल ऑलवेज़। हाँ, बहुत ये शब्द तो आपको पता ही होंगे, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कौन बिल्कुल, कहते हैं पान खाते नहीं, आप शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो बिल्कुल। अगर आपका इंटेंशन कुछ करने का है, या जो भगवान ने हमको दिया है उसका अच्छे से उपयोग करने का है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हिमाली जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ये एपिसोड जब रिलीज होगा 26 फरवरी को, संडे है, हर संडे को मैं एपिसोड रिलीज करती हूँ एचीवर्स का। सही मायने में जी आपने एक ऊंचाइयां हासिल करी है। एचीवर्स बहुत छोटा नाम है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपने जो प्रेरणा हर, और महिलाओं को नहीं, हर व्यक्ति को दी है अपने हॉबीज के साथ जिंदगी बिताने का, वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रांग है। बहुत ताकत है आपकी इस शब्दों में, कि जिम्मेदारियां पूरा करने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती है। उसके बाद अपने हॉबीज को लेकर अगर आपने कुछ नहीं सीखा उस वक्त, जो मौका नहीं था, तो आप इस वक्त जिम्मेदारियां कुछ हल्का होने के बाद भी, कुछ कर्तव्य कम होने के जी बाद आप अपने को लेकर आगे बढ़िए, और जिंदगी में ऐसा जी कुछ जी। कीजिए जो कभी पहले ना किया हो। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये मैसेज बहुत लोगों तक बिल्कुल। जाएगा, और मैं सोचती हूँ एपिसोड को देखने के बाद हर कोई व्यक्ति
आपकी बात मानकर हॉबीज को फॉलो जरूर करेगा। और यही मेरे लिए एक असली में अचीवर्स की कामयाबी होगी कि हर व्यक्ति एक अच्छे दिशा में जाए, अपने जीवन को सफल बनाने में वो सकारात्मक अपना योगदान दे। धन्यवाद जी, हिमाली जी, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू। मिलकर। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। आशा करते हैं कि आपको उज्जवल भारत न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत अचीवर्स यानी उपलब्धियों का ये छठा एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, और कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। इसी प्रकार से हर हफ्ते हर रविवार को ऐसे ही एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति से आपका फिर एक बार मुलाकात कराएंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। सैपलिंग स्कूल धर्मपुर वलसाड़, शेपिंग द लिटिल माइंड्स, एडमिशन ओपन, हरी अप, जल्दी कीजिए।